بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم والفرقان المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد، یہ عاجز ناچیز خاندانی طور پر اس درگاہ سے تعلق رکھتا ہے اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب میری پیدائش ہوئی اور میں محض 2 مہینے کا تھا تو میرے والد بزرگوار مجھے حضرت سونا سے رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور اس اللہ کے کامل ولی نے اپنے ہاتھ میں اس گنہگار کو لیا اور دعا فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دعا کے نتیجے میں آج میں جو کچھ بھی ہوں تو اس اللہ کے کامل ولی کی دعا کے نتیجے میں ہوں. اور اس کے بعد روحانی طلبہ جماعت کے ساتھ جو تعلق جڑا، میں روحانی طلبہ جماعت برانچ کنڈیارو کا صدر رہا 2 سال تک، 2001 اور 2002 میں. اس کے بعد شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میں میں کوئی عہدیدار تو نہ رہا، مگر روحانی طلبہ جماعت کے دوستوں کے ساتھ اس روحانی سفر میں چلتا رہا. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو خوبصورت شکل میں تخلیق کیا، انسان کو بڑا خوبصورت بنایا. اب انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس خوبصورتی میں ڈھال لیں. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کو اگر ہم ادبی دنیا میں دیکھیں تو اسے ہم پوسٹ ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں. آپ لوگ یونیورسٹی کے اور اسکول کے کالجز کے طلباء ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا پرفتن دور ہے. اس دور میں ایسے سوالات پیدا کیے گئے ہیں کہ انسانوں نے اپنے بارے میں، اپنے ہونے کے بارے میں بھی مختلف تھیریز دے رکھی ہیں کہ بھئی انسان کا مقصد کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اگر میں بات کو تھوڑا اور لمبا کر دوں تو یہاں تک بات آ گئی ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے یا خدا کو ہم نے پیدا کیا ہے. اس قسم کے سوالات جنم لے رہے ہیں. اس پرفتن دور میں اگر زندگی خوبصورت بنانی ہے اور خوبصورت زندگی پر چلنا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں صرف اس دنیا کی خوبصورتی کے بارے میں نہیں سوچنا، ہمیں تو آخرت کی خوبصورتی کے بارے میں بھی سوچنا ہے. تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم ان مسائل کا مقابلہ کس طرح سے کریں. تو میرے دوستو، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دے رکھا ہے، ایک ایسا ٹیکسٹ دے رکھا ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا ہے. مسلمانوں کو گمراہ ہونے کے لیے کسی بات کا ڈر نہیں ہے جب تک مسلمان قرآن سے اور سنت سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. تو ہم اپنے دنیا کے مسائل بھی قرآن سے پوچھیں گے اور آخرت کے مسائل بھی قرآن سے پوچھیں گے. اور یہی روحانی طلبہ جماعت کو سبق ملا ہے کہ آپ دنیاوی کام بھی کریں، آپ دنیا کا علم بھی حاصل کرتے رہیں، آپ اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں پڑھتے رہیں، مگر کبھی بھی قرآن کا دامن نہ چھوڑیں اور کبھی بھی نبی کی سنت کا دامن نہ چھوڑیں. آپ کو جب بھی کنفیوژن ہو جائے، آپ کو جب بھی سوالات پیدا ہو جائیں تو آپ کو معلومات کا جو ذریعہ ہوگا وہ قرآن اور حدیث ہوگا. آج کے دور میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، یہ بلکہ یہ کائنات ہی پیدا نہیں ہوئی، یہ کائنات ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. ارتقاء کا نظریہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، تھیوری آف ایولیوشن پڑھائی جاتی ہے، جس کے ذریعے صریحاً تھیوری آف کریشن کا انکار کیا جاتا ہے. یہ محض دیکھنے میں تو چھوٹی بات ہے، 9th کلاس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی.
इस दुनिया ने इर्तिका के ज़रिए तरक्की की है। अब जब हम ये मानने लगेंगे कि इर्तिका हुई है और दुनिया पैदा नहीं हुई है, तो माअज़ल्लाह हम पैदा करने वाले का भी इनकार कर रहे हैं। और पैदा करने वाले का इनकार माने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इनकार कर रहे हैं। और हम मुसलमान हैं, जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कोई शक भी आ जाए तो हमारा ईमान कहाँ रहता है। तो बच्चों को यही पढ़ाया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है कि इस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है मगर फिर मकसद देना पड़ता है। मगर जब यही सवालात हम कुरान से पूछते हैं तो कुरान हमें सीधा सीधा बता देता है। और कुरान है क्या चीज़? अब्दुल्लाह बिन अब्बास से एक रवायत है कि आपने फरमाया कि अगर मेरी ऊँटनी गुम हो जाए, मेरी ऊँटनी गुम हो जाए तो मैं किसी से पूछूंगा नहीं, मैं कुरान खोल कर देखूंगा, मुझे अपनी ऊँटनी का पता चल जाएगा। और हमें यह बताया जाता है कि कुरान तो 1400 साल पहले आया था, इसमें तो 1400 साल पहले के मसाइल होंगे, आज 2025 के मसाइल कुरान में कैसे होंगे। मगर ये बातें बताने वाले ये नहीं जानते कि हमारा कुरान पर अकीदा यह है कि कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। कुरान उस खालिक की किताब है जिसने इस दुनिया को पैदा किया और जो इस दुनिया के चलाने के असबाब भी पैदा करता है, जिसके इल्म के सामने ये दुनिया के इल्म कुछ भी नहीं है। तो जब हम कुरान से पूछते हैं कि हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो कुरान तो हमें सरीहन बताता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब सवाल ये आता है कि ये इबादत क्या है। अब यहाँ पर फिर हमारा बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। मुख्तलिफ लोग उसे इबादत का मुख्तलिफ तरीका समझाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने का नाम इबादत है, कुछ लोग कहते हैं कि ज़िक्र करने का नाम इबादत है। मगर फिर ये कन्फ्यूजन भी हम कुरान से दूर करेंगे कि इबादत है क्या। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी कायनात पर गौर व फिक्र करने का नाम इबादत है। आप अल्लाह की इस वसी कायनात पर, आप अल्लाह के इस कुदरत के कश्मे पर जब आप गौर करते हैं तो आपकी दिल में अल्लाह तबारक व तआला के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है। और जो ये मोहब्बत बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में आप अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं, जो हमें हमारे मुर्शिद ने जिक्र कल्बी की सूरत में सिखाया, यही इबादत है और यही आप गौर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फरमा दिया था कुरान शरीफ में कि ये जो कुरान है ये हिदायत है, मगर ये सबके लिए हिदायत नहीं है। कुरान शरीफ की पहली सूरत में, सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया था, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुद्दल लिल मुत्तकीन। ये किताब हिदायत है, मगर किन के लिए? मुत्तकियों के लिए हिदायत है। फिर अल्लाह खुद ही आगे बताता है कि मुत्तकी कहते किसे हैं। और यही मेरी आज की इस बात का जो है वो जिस्ट होगा। यही बात समझाने के लिए मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। मैं बड़ा गुनहगार बंदा हूँ, मगर ये बात समझ लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मुत्तकीन है क्या। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जिन्होंने अनदेखे पर ईमान ले आए। तो हम सब ने तो अनदेखे पे ईमान लाया है। हमने ना कभी खुदा देखा, हमने ना कभी रसूल देखा, हमने ना कभी कब्र का अजाब देखा, हमने ना कभी क़यामत देखी, हमने ना कभी जन्नत देखी, हमने ना कभी दोज़ख देखी। हम तो अनदेखे पर ईमान लाते हैं। ये बात हो गई। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात, और वो नमाज को कायम करते हैं। और बाद में अल्लाह ने फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से फ़ायदा लेते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि रिज़्क़ से क्या मुराद है। लोग कहते हैं रिज़्क़ से खाने पीने की मुराद है, मगर तफसीर में लिखने वाले लिखते हैं कि रिज़्क़ से सिर्फ खाने पीने की मुराद नहीं है। रिज़्क़ से मुराद है अल्लाह तबारक व तआला की वो तमाम की तमाम नेमतें जो आपको दी गई हैं। अगर आपको सेहत मिली तो यह भी रिज़्क़ में शामिल है, अगर आपको इल्म मिला तो यह भी रिज़्क़ में शामिल है, अगर आपको दौलत मिली तो यह भी रिज़्क़ में शामिल है। तो अल्लाह कहता है कि वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, रिज़्क़ खाओ नहीं, रिज़्क़ से फायदा हासिल करो। अब फायदा हासिल करने से क्या मुराद है कि अगर कोई आलिम है तो वह अपने इल्म से अपने लिए भी फायदा हासिल करे, और ये जो दूसरे
अहबाब बैठे हैं उनके लिए भी फ़ायदा हासिल करे। अगर आप दौलतमंद हैं तो अपनी दौलत से खुद के लिए भी फ़ायदे हासिल करो, अपने अहबाब के लिए भी फ़ायदे हासिल करो। अगर आप सेहतमंद हैं तो अपने लिए भी फ़ायदे हासिल करो, अपनी सेहत से दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करो। अगर जब आप इस तरह से रिज़्क़ से फ़ायदा हासिल करते रहेंगे, अपने लिए फ़ायदा हासिल करते रहेंगे, अपने अहबाब के लिए फ़ायदा हासिल करते रहेंगे, अपने दोस्तों के लिए फ़ायदा हासिल करते रहेंगे, तो अल्लाह ने फरमाया कि उलाइका ला हुद्दा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग हैं जो कामयाब होंगे। तो हमें तो कामयाबी का ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बता दिया, और फिर हम अपने मुर्शिद मुरब्बी के दिए हुए रास्ते से हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम मुर्शिद वाले हैं, क्योंकि दुनिया में सबक पढ़ाने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, और उस उस्ताद का कामिल होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस्ताद कामिल होगा तो वो कामिल शागिर्द पैदा करेगा। मैं रूहानी तलबा जमात के तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमने रूहानी सफ़र में जिस मुर्शिद को, जिस उस्ताद को पा लिया है, उससे बढ़कर इस दुनिया में मुझे कोई शख्स नजर नहीं आता जो हमारी इल्मी तरबियत भी करे, जो हमारी अमली तरबियत भी करे, जो हमें इस दुनिया में भी कामयाबी के रास्ते दिखाए, जो हमें आखिरत में भी कामयाबी के रास्ते दिखाए। तो मेरे भाइयों, ये रूहानी तलबा जमात से जुड़ना हकीकत में कुरान की उस आयत पर अमल करना है कि अल्लाह ने फरमाया था कि हमने इंसानों को खूबसूरत बनाया है, मगर लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बेशक हमने इंसानों को खूबसूरत बनाया। अब इंसानों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस खूबसूरती को निखारें, इस खूबसूरती को इस दुनिया में बढ़ाएं ताकि इस दुनिया की खूबसूरती बढ़ जाए। मगर फिर अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा आगे डराते भी हैं कि अगर आपने खुद को खूबसूरत ना बनाया, अगर आपने खुद को इस रास्ते पे ना चलाया तो फिर क्या होगा, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, तो फिर आप लोग अस्फल साफिलीन बन जाएंगे, आप लोग जानवरों से भी बदतर बन जाएंगे। तो रास्ता हमारे हाथ में है, मुर्शिद कामिल ने हमारी रहनुमाई की हुई है, इन तमाम दोस्तों ने आपकी रहनुमाई की हुई है। रूहानी तलबा जमात का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। इस प्लेटफॉर्म से जब आप जुड़े हैं तो इस मकसद को, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपने मेंबरशिप हासिल कर ली और आपने बस तंजीम के लिए काम करना शुरू कर दिया। आप वो मॉडल बन जाएं, आप वो नमूना बन जाएं कि आपको देखकर आपका दूसरे दोस्तों को रश्क आने लगे कि ये कौन सी मखलूक है, ये कौन से लोग हैं, सर पर अमामा रखे हुए हैं, सर ढके हुए हैं, गाड़ियां सजाई हुई हैं, पढ़ते यूनिवर्सिटियों में हैं, पढ़ते कॉलेजों में हैं, मगर नमाज भी नहीं छोड़ते, अच्छाई का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ते। तो लोग आपको देख कर आपसे सीखें, और जिस दिन ये बात हो गई तो जिस मिशन के लिए हज़रत सोना से रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानी तलबा जमात का बुनियाद रखा था वो मकसद हासिल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अजीम मिशन से जुड़े रहने में हमारी आफियत करे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कमी कोताहियों को माफ़ करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अजीम मकसद से मरने तक जुड़ा रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमें खात्मा खैर से, खात्मा बिल ईमान से हमें मौत दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।